سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو جیل سے ایک ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا، ان کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے اس کو شیئر کیا گیا۔ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب موجودہ ہسٹری میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، نواز شریف کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں ہوا، زرداری کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا، باقی جو موجودہ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ سب سے برا سلوک ہوا تھا جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ، اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی اتنا برا نہیں ہوا جتنا برا عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ماضی میں ذوالفقار دی بھٹو کے ساتھ بہت برا ہوا، باچا خان جیل میں رہے، کچھ اور لوگ جیل میں رہے، نہ ہی ذوالفقار دی بھٹو کی بیوی کے ساتھ یہ کیا گیا، بلکہ ڈنڈے ونڈے انہیں پڑے، بار احتجاج میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب نے ایک شکوہ کیا، یہ شکوہ ٹھیک ہے، نواز شریف کو پکڑا پرویز مشرف نے، لیکن ان کی بیوی کے ساتھ وہ نہیں کیا۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملکی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں۔ جبر اور فستائیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ تک گندا ہوتا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا۔ اب یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے، عمران خان صاحب کے فالوورز کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے، کہ ایک آدمی کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور بے گناہی بند کیا ہوا، 9 مئی کے مقدمے میں کیا نکال لیں گے عمران خان میں سے؟ عدالتیں انصاف دے نہیں رہی، پوری کا پورا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو قابو کر لیا گیا ہے، اور عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو عدالتوں سے عمران خان صاحب کے باہر آنے کی امید بھی ختم ہے۔ اب عدالتیں عمران خان کو انصاف تبھی دیں گی جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کو اس بات کی اجازت دے گی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں عقل آ جائے یا ان کی عقل ٹکانے آ جائے، اور عقل ٹکانے لانے کے لیے پاکستان کی عوام کو اٹھنا پڑے گا، جو فی الحال ابھی تک تو نہیں اٹھی۔ وہ کب اٹھے گی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ کبھی بھی سانحہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ انہیں عوام کا اصل میں سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو معاملہ جو ہے وہ چند دن کا ہی ہے، یعنی چند گھنٹوں کا ہی آپ سمجھ لیں کہ جس وقت عوام کھڑی ہوگی اس وقت تو کہانی ہو جائے گی ختم۔ اب عمران خان صاحب نے بڑی تکلیف دہ بات کی کہ وضو کرنے کے لیے جو پانی ہے وہ بھی گندا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا۔ اب عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو آئے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے، اس پہ پہنچا لانا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف نے، خیبر پختونخوا کی حکومت کو، ان کے وزراء کو اٹھ کے اس کے اوپر رولا ڈالنا چاہیے تھا۔ ان کا وزیر اعلیٰ جس کو سارے ووٹ عمران خان کے پڑے ہیں، اور آج وہ عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا ہے، جو وزراء ہیں ان سارے ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑے ہیں، وہ سارے عمران خان کی وجہ سے آج وزراء ہیں۔ جتنے پارلیمنٹیرینز یا سینیٹرز ہیں کسی نے کوئی رولا نہیں ڈالا، نظر ہی کہیں نہیں آ رہا۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ لوگ روت ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو نہیں اٹھایا۔ عمران خان صاحب کا جو مسلز ہیں وہ لگاتار ویک ہو رہے ہیں، وہ لٹک رہا ہے جسم ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ان کی عمر 70 سال سے زائد ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ینگ رکھنے کے لیے اور مضبوط رکھنے کے لیے، اپنی عمر سے چھوٹا رکھنے کے لیے انہوں نے بڑی سخت کسرت کی اپنی زندگی میں، انہوں نے بڑی ایکسرسائز کی ہے۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ پلان ہے کہ اس آدمی کو بوڑھا کرو، اس آدمی کو بالکل ایسا کر دو کہ لوگ مایوس ہو جائیں۔ اب وہ کرنے کے لیے انہیں 22 گھنٹے تک وہ کمرے کے اندر بند رکھتے ہیں، انہیں ایکسرسائز نہیں کرنے دیتے، انہیں موقع نہیں دیتے کہ وہ ورزش کریں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے مسلز کو مضبوط رکھیں۔ تو لگاتار جو ہے وہ ان کا میس گر رہا ہے، ان کا وزن بھی گر رہا ہے، ان کے مسلز بھی کمزور پڑ رہے ہیں، اور ان کے جسم کا گوشت لٹک رہا ہے۔ یہ مجھے ان کی فیملی بھی یہ بات کنفرم کرتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے کہ اس آدمی کو کمزور کریں، جسمانی طور پہ بھی ان کو توڑیں، اور جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی ان کو کمزور کریں۔ عمران خان کہتے ہیں جی میری کتابیں جو اہل خانہ کی جانب سے جیل حکام تک پہنچائی جاتی ہیں وہ بھی کئی ماہ سے نہیں دی گئی، ٹی وی اور اخبار بھی بند ہے، بار بار پرانی کتابوں کا مطالعہ کر کے میں وقت گزار رہا ہوں، مگر اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ میرے تمام بنیادی انسانی حقوق پامال ہیں، قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی سہولیات بھی مجھے میسر نہیں ہے۔ بار بار درخواست کے باوجود میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، اور صرف اپنی مرضی کے بندوں سے مجھے ملوا دیتے ہیں، اور دیگر ملاقاتیں بند ہیں اپنی مرضی کے بندوں سے۔ یعنی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جو بندے مجھے جیل میں ملنے آتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آتے ہیں، اب جو ملنے جاتے ہیں وہ ذرا اپنا احتساب کر لیں۔ علیمہ خان صاحبہ تو بڑے لمبے عرصے سے مل نہیں پا رہی، ان کا تو ملاقات بند کیا ہوا ہے۔ سلمان اکرم زادہ صاحب کی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین لوگ ہیں یا ان کے اتحادی ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی بند ہیں، انہیں بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو جو بندے مل رہے ہیں، جیسا کہ بیرسٹر سیف مل لیتا ہے جا کے، یا کچھ وکیل ہیں ایک دو وہ مل لیتے ہیں جا کے، تو ان کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے بندوں سے میری ملاقات کروا دیتے ہیں اور دیگر ملاقاتیں میری بند ہیں۔ تو ان بندوں پہ عمران خان صاحب نے ایک طرح کا عدم اعتماد کیا ہے۔
मैं वादे पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। ये बात ठीक है, तहरीक का मोमेंटम नहीं बना अभी। फिर जो नवंबर की तहरीक का मोमेंटम बना वो भी बड़ा तगड़ा और बड़ा अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम बना ही नहीं अभी तक, वो वाली चीज अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि पहले अवाम ज्यादा तगड़े थे और बहुत एक्टिव थे, बड़े खुलकर सामने आ रहे थे और लीडरशिप हल्की पड़ी हुई थी। आजकल लीडरशिप जोर लगा रही है, लेकिन अवाम के अंदर वो दिलचस्पी पहले जैसी नहीं है, ये माननी पड़ी। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां इमरान खान साहब का सिर्फ झंडा खड़ा करते थे ना, तो लोग भर देते थे जलसागाह को। वहां पे जो माजी में अब जलसे वलसे हो रहे हैं, उनमें वो लोगों की दिलचस्पी उस तरह नजर नहीं आ रही। ये जरूर है कि वो बड़े जलसे हैं, तगड़े जलसे हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे होते हैं, लेकिन जो एक अलग किस्म का होता था ना कि जैम पैक किस्म का जलसा हो जाना, वो अभी तक हमें कहीं पे नजर नहीं आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे सारी दुनिया जानती है वो क्या जलसे होते हैं। हमने आखिरी मर्तबा लोगों को इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए देखा था, उस बड़ी तादाद में, उस अंदाज में जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है। लेकिन अब उसके बाद से लेकर अब तक लीडरशिप से एक मायूसी है अवाम को, और उसकी वजह से मोमेंटम नहीं बन रहा, और इमरान खान साहब ने उसी का जिक्र किया। मैं 78 साला निजाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। 8 फरवरी को अवाम ने बगैर निशान के जिस तरह तहरीक इंसाफ पर एतमाद करके आप लोगों को वोट दिए, इसके बाद सबका फर्ज बनता है कि अवाम की आवाज बने। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त जाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूं और इसके लिए कुर्बानियां दे रहा हूं। ऐसे में पार्टी में इख्तलाफात पैदा करना मेरे मकसद और विजन को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। फार्म 47 की हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया के हाथ पांव बांध कर उसे मफलूज कर दिया है। 26वीं तरमीम वाली अदालतों से टाउट जजों के जरिए जैसे स्याह फैसले आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। हमें अदलिया को आजाद करवाने के लिए अपनी भरपूर जिद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि अदलिया की आजादी के बगैर किसी मुल्क व कौम की बका मुमकिन नहीं है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। आज भी वो जजेस जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं, जो जजेस इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज हैं, और ये पीसीओ जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिखकर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिखा। वही पीसीओ जजेस हैं। कौम को जमीर वाले जजेस और बेजमीर जजेस में फर्क करना होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं जो अदा करनी है, और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊं, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार दूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फिकार दी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से? इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज को बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो, तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आजाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाए। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है, और हुकूमत जो है वो एक जोन में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा, और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए, और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं।
تو तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल भैया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना ये वर्कर्स के लिए होगी। लीडरशिप इमरान खान साहब की किस तरह की है अब आप अंदाजा कर ले खुद ही। ये नहीं अपनी मर्जी से वो एहतजाज करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। इसकी सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था तो सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आए। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। आप कौमी असेंबली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाए और टेस्ट करें तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने ये आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूं जिसके लिए जेल में अलग कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को वीवीआईपी सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहाँ जंगल का कानून है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुंचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूं। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूं लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। जुनैद अकबर बड़े लंबे अरसे से नहीं मिल पाए, शाहिद खटक नहीं मिल पाए, सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोग हैं। ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का बताया ना, पंजाब के बेशुमार लोग हैं इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के उनको भी नहीं मिलने दिया जाता, हालांकि इनके बाद अदालती अहकामात होते हैं फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सजाएं सुनाई गई। इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरी अहले खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्जाम था जो साबित भी नहीं हुआ। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निजाम पर अदम एतमाद कर दिया है। अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने सहाफियों से, वकला से और सबसे गुफ्तगू की। ये जनाब उस गुफ्तगू का खुलासा है। अब एक खबर और है, ये इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर भी है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो फिलहाल खामोश है, उन्होंने कोई रोला शोला नहीं डाला, लेकिन इमरान खान साहब ने भी हदायत की है और पार्टी ने भी हदायत की है कि तमाम लोग पहुंचे आज के दिन में हाई कोर्ट। तमाम अरकान असेंबली अपने साथियों को लेकर पहुंचे और हाई कोर्ट आकर एहतजाज करें और हाई कोर्ट से कहें कि वो इमरान खान साहब का मुकदमा सुने। लेकिन कई महीने से यानी जनवरी से इमरान खान साहब के वकील कोशिश कर रहे हैं और अब तक ये केस नहीं लगने दिया। अंदाजा करें किस तरह के चीफ जस्टिस कायम मकाम लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये 26वीं तरमीम के नतायज। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के दांत तोड़ दिए गए हैं। अदालतें वही करती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट या निजाम चाहता है और उसी तरह हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और जिस तब्दीली के बारे में कहा जा रहा था कि वो आ रही है, रवैयों में तब्दीली आ रही है, लोग छूट जाएंगे, दावे, वादे, कस्में, मुलाकातें, वो सारा कुछ हवा हो गया और उसमें से कोई भी चीज ठीक नहीं निकली। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी पार्टी में एक बात बताई है
اور یہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے یہ عدالت میں لگ رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ عدالت میں اپنا مقدمہ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں. اب اس پہ جو فیصل چودھری صاحب ہیں، فواد چودھری کے بھائی، عمران خان صاحب کے سابق وکیل، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے. کیا اس بینچ کو دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلہ کیا آنا ہے؟ تحریک انصاف کو اور باقی جماعتوں کو تو اس بینچ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا.